محترم ناظرین آداب، روشن خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا صوم کو قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے نظام آباد پارلیمانی حلقے سے 50 سے زائد پرچہ جات نامزدگیاں داخل۔ ٹی آر ایس، بی جے پی اور کانگریس امیدواروں نے بھی نامزدگیاں داخل کی۔ مفاد پرست سیاسی جماعتیں کسانوں کو اکسا رہی ہے۔ کسان مودی اور راہل کے خلاف پرچہ جات نامزدگی داخل کرے کیونکہ مسئلے کا حل ان کے پاس ہے، کہ کویتا کا بیان۔ عوامی مفاد میں بھیجا گیا مرکزی بجٹ مشن بھگیرتا میں استعمال، کمیشن کی خاطر عوام کا نقصان۔ ڈی اروند کا ٹی آر ایس حکومت پر سنگین الزام۔ 3 طلاق کے مسئلے پر گفتگو۔ انتخابات میں سیانتی بندوبست کے لیے بی ایس ایف کی 2 کمپنیوں کی آمد۔ سی پی کارتکیہ نے کی ملاقات۔ رائے دہی سے قبل مزید فورس کی آمد متوقع۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ضلع کلکٹر نے رات کے وقت اچانک تنخی کی۔ انہوں نے سڑک پر تنخی کرنے والے پکیٹس کا جائزہ لیا اور وہاں اندراج کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے سختی سے ہدایت دی کہ سخت چوکسی اختیار کیا جائے، ہر گاڑی کی تلاشی لی جائے اور مکمل ریکارڈ درج کیا جائے۔ پارلیمانی انتخابات کی تیاریاں بالخصوص پولنگ مراکز کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل رات ضلع کلکٹر و ریٹرننگ آفیسر رام موہن راؤ نے اچانک ہی آرمور کے ماکلور منڈل کا دورہ کیا اور وہاں پولنگ مراکز کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی سیارتی انتظامات پر بھی غور کیا اور ریکارڈز کی جانچ کی۔ ضلع کلکٹر نے پولیس کی بھی کارکردگی کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کی۔ سڑکوں پر پولیس پکیٹس لگائے گئے جو گاڑیوں کی تنخی کر رہی ہیں اور تمام گاڑیوں کا ریکارڈ میں اندراج بھی ہو رہا ہے۔ ضلع کلکٹر نے اس ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ ریکارڈ کو پوری سنجیدگی سے درج کیا جائے، قطعی لاپرواہی نہ برتی جائے، اور ضلع کلکٹر نے کہا کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی ضلع کے کسی بھی حصے میں تنخی کر سکتے ہیں، لہٰذا تمام عملہ چوکس رہے اور سختی سے نگاہ رکھے اور تلاشی مہم جاری رکھے۔ لاپرواہی پر ضلع کلکٹر نے سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ سابق ایم پی کلوا کنٹلا کویتا نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ انہوں نے صحافت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے مسئلے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور کسانوں کو ان کے خلاف پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ کسان اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے مودی اور راہل کے خلاف پرچہ نامزدگی داخل کرے۔ سابق ایم پی کے کویتا نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے علاوہ ضلع کے اراکین اسمبلی بیگلا گنیش گپتا، باجی ریڈی گووردھن، محمد شکیل عامر، جیون ریڈی اور ایم ایل سی آکولا للیتا بھی موجود تھی، جبکہ مسلم قائدین بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ کہ کویتا نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے عوام کے مفاد میں بے شمار کام کیے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں بعض عوامی تائید سے محروم سیاسی پارٹیاں کسانوں کو بہکا کر ریاستی حکومت کے خلاف سرگرم کرنا چاہتی ہے اور کسانوں کو ورغلا کر ان کے خلاف انتخابات میں اتارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کہ کویتا نے کہا کہ کسانوں کو اگر اپنے مسائل حل کروانا ہے تو مرکزی حکومت پر دباؤ بنانا ہوگا، کیونکہ مرکزی حکومت ہی ریاست کے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز کی اجرائی میں لیت و لال کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سابق ایم پی نے کہا کہ اگر کسان دباؤ بنانا چاہتے ہیں اور کسانوں کے مسئلے کو ملک گیر سطح پر اٹھانا چاہتے ہیں تو کسانوں کو وزیر اعظم نریندر مودی اور اپوزیشن قائد راہل گاندھی کے خلاف پرچہ جات نامزدگی داخل کرنا چاہیے۔ ریکویسٹ ہے کہ نامینیشنز نظام آباد پارلیمنٹ میں ڈالنے سے چرچا تو ضرور ہوگا،
लेकिन नॉमिनेशंस नरेंद्र मोदी जी पे डालेंगे तो सबसे बड़ा चर्चा होगा, नॉमिनेशन राहुल गांधी जी के ऊपर डालेंगे तो सबसे बड़ा चर्चा होगा, और पूरे किसानों के मसाइल हल होने का भी आशंका है। रियासती हुकूमत ने अवामी फलाह के बजट को महज कमीशन की खातिर अपनी पसंदीदा स्कीमात में बजट में मुंतकिल कर दिया। डी अरविंद के खतरनाक इल्जामात। उन्होंने मुस्लिम तबके से भी वोट देने की अपील की और कहा कि शादी मुबारक, गैस और दीगर स्कीमात बीजेपी की ही देन है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक बिल मुस्लिम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में उठाया गया कदम है। बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने आज उनके दफ्तर वाक़े सुभाष नगर में उर्दू सहाफ़त से गुफ्तगू की और मुस्लिम तबके से अपील की कि उनके हक में ही वोट दे। उन्होंने रियासती टीआरएस हुकूमत को नाकारा और मफाद परस्त करार दिया। कहा कि यह हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत ने आवाज योजना के तहत भारी बजट गरीब अफराद के लिए मकानों की तामीर के लिए फराहम किए थे, जबकि केसीआर हुकूमत ने इस भारी फंड को मिशन भगीरथा में इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इस स्कीम में उनको भारी कमीशन हासिल हो रहा था। डी अरविंद ने इल्जामात की बौछार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत और मुकामी एमपी महज पैसों के लिए ही काम करते हैं। माबाकी तमाम मुहाजों पर वो अक्सर नाकाम हैं और वो कोई ठोस काम अपनी कारकर्दगी के तौर पर बता नहीं सकते। डी अरविंद ने शादी मुबारक और दीगर कई स्कीमात को बीजेपी और नरेंद्र मोदी की स्कीमात करार दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत ने 3 तलाक के खिलाफ बिल को मुतारुफ करवाया। इस मौके पर एडिटर रोशन टीवी ने कुछ अहम सवाल उठाए। उनकी गुफ्तगू पेश है। 3 तलाक के मामले में जैसा कि अभी आप पता है, मुस्लिम लेडीज अपोज थे। इसके ऊपर जो बीजेपी गवर्नमेंट गौर नहीं करती, रैलीज निकले बड़े बड़े रैलीज निकाल के अपोज करी। मुस्लिम लेडीज, आप लेडीज के हमदर्दी कर रहे हो, जबकि लेडीज ये बोल रहे कि जो मोदी गवर्नमेंट हमारे पे जो जुल्म कर रही है। लाखों मुस्लिम लेडीज इसका सपोर्ट भी करें। नहीं, आप झंडे को ले जाए। अब आप बोले अपोज करे, मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट किए। आपको मुस्लिम लेडीज जो है सो रैली निकाले। हाँ भाई, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जो रैलीज जो फायरिंग हुई थी गुजर किसानों पे, उसका आप प्रूफ लाओ बोले, लेकिन फिर वो बाद में नहीं ये बोलते मुस्लिम रैलीज में आप और रैलीज बोल रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ, मैं थोड़ी आपको प्रूफ पूछ रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। रैलीज वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जो ओवैसी करता है ऐसे लोग यही करते हैं, भड़काते हैं। लाखों लोग 80% मुस्लिम लेडीज ट्रिपल तलाक को वेलकम किए। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है वो। मुस्लिम लेडीज जो निकाले थे रैली, इसके ऊपर आप फोकस करिए। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोल रहा हूँ ना मैं। पॉलिटिकल नहीं है वो आप नहीं है बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। 90% लेडीज बीजेपी मस्जिद से अटैच है, ये नहीं बोल सकते। हम पूरा सोच विचार करके, सर्वे करके, पूरा करके एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिए। एक आध दिन रैली हुआ, उसके बाद क्या हो गया, फिर क्यों बंद हो गया? आज किसान का यहाँ पे एजिटेशन चल रहा है। एक तेलंगाना एजिटेशन देखे अपन, आज हल्दी का एजिटेशन 2 महीने से चल रहा है। क्या हो गया? एक आध दिन निकाल दिए, हाँ, फिर क्या हो गया रैली? फिर कहाँ चल रहा है? वो ओवैसी के घर में उसके दिमाग में चलते रहता है। छोड़ो ना भाई, एक औरत को आत्मसम्मान मिल रहा है तो अपन आदमी लोग, वो आप आदमी लोग उसका वेलकम करना चाहिए। हाँ, का लगने वाला है। ये जो गरीबों का पैसे इधर से उधर से इधर, बीच में कमीशन खाना, ये सब जो काम करते हैं ना, ये दलाल करते हैं। ये एमपी, सीएम, मिनिस्टरा नहीं करते। गरीब का घर का पैसा लेकर मिशन भगीरथा को ट्रांसफ़र कर उसमें 20% कमीशन लेने के काम ये जो करते हैं ना, इनको दलाल कहते हैं। ऐसे दलालों को यहाँ का कौम चुनेगा नहीं।
सियानती इंतजामात को मौसर बनाने बीएसएफ की 2 कंपनियों को तलब किया गया। राय दही से कबल मजीद फोर्स की आमद होगी। असम्बली इंतखाबात के मौके पर बीएसएफ के जवानों की कारकर्दगी शानदार रही। इस बार भी उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। सीपी ने उन जवानों से मुलाकात की। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर सियानती बंदोबस्त को मजबूत बनाने के लिए बीएसएफ के जवानों को एक बार फिर तलब किया गया। क़ब्ल असेंबली इलेक्शन के मौके पर भी बीएसएफ जवानों को तलब किया गया था और उन्होंने शानदार खिदमत के जरिए असेंबली इंतखाबात को पुरसुकून रखने में अहम किरदार अंजाम दिया था। लिहाजा एक बार फिर पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर बीएसएफ की 2 कंपनियों को तलब किया गया। उन जवानों को पर्चाजात नामजदगी से लेकर इंतखाबी राय दही की तकमील तक जिले में ही मुतय्यन रखा जाएगा। इम्कान है कि इंतखाबी राय दही से कबल मजीद कंपनियों को तलब कर लिया जाएगा। आज जिला कलेक्टर ऑफिस के करीब पर्चाजात नामजदगी के अतकाल के मरकज पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। कमिश्नर पुलिस की सादगी और मिलनसारी से बीएसएफ जवानों ने मसरत महसूस की। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, एआरएफ, सीआरएफ, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मुअस्सर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, टीओटी, 2D एको, डायलिसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जेजे रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर।
साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्का ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के लिए राय दही, कड़े मुकाबले का इम्कान। टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों के अलावा दीगर उम्मीदवार मैदान में। ताहिर बिन हमदान ने दावा किया कि कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की जीत यकीनी है और पार्लिमानी इंतखाबात में भी कांग्रेस को ही जीत हासिल होगी। हल्का ग्रेजुएट के लिए आज 22 मार्च को राय दही मुनक्किद की। शहर में कई मकामात पर पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। हल्का ग्रेजुएट एमएलसी 4 अजला करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और मेदक पर मुश्तमिल है और यहाँ बड़े पैमाने पर ग्रेजुएट वोटर्स है। आज इस हल्के के लिए राय दही का इनेकाद अमल में आया, जिसमें टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के ताईदी उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन पोलिंग बूथ के करीब खड़े अपने ताईदी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील कर रहे थे। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है और साथ ही कांग्रेस का एमपी उम्मीदवार भी भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। ఎన్నికల్లో ఉదయం నుండే ఓటర్ మహాశయులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు విచ్చేసి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు। జీవన్ రెడ్డి పక్షాన నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలో భారీ ఎత్తున పోలింగ్ జరగడం ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తుంటే మాకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే జీవన్ రెడ్డి గారి గెలుపు ఖాయమనేటువంటి విషయం। అందుకొరకే ప్రశ్నించే గొంతు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో చదువుకు टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दीगर 50 से ज्यादा किसानों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हफ्ता और पीर के दिन मजीद पर्चा जात नामजदगियां दाखिल हो सकते हैं। सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है और यहाँ ईवीएम और बैलेट पेपर की जगह बैलेट बुक छपानी पड़ेगी। पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर हल्दी और लाल जवार के बरहम किसानों ने इंतखाबी सूरत हाल को तशवीश का सबब बना दिया, क्योंकि रियासती हुकूमत से नाराज किसान रियासती वजीर आला केसीआर की बेटी, साबिक एमपी और मौजूदा टीआरएस उम्मीदवार के खिलाफ बड़े पैमाने पर पर्चा जात नामजदगी दाखिल करने का मंसूबा रखते हैं और कई किसानों ने अब तक अपने पर्चा जात नामजदगी दाखिल कर दिए और आज टीआरएस उम्मीदवार के कविता, कांग्रेस उम्मीदवार मधु याशकी गौड़ और बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद की जानिब से एक एक सेट दाखिल किया गया है। वहीं आज लगभग 50 किसानों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हफ्ता और पीर के दिन भी बड़ी तादाद में पर्चा जात नामजदगी दाखिल होने का इम्कान है। इस तरह निजामाबाद हल्का पार्लिमान एक अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार बन रहा है। मंसूबे के मुताबिक अगर पर्चा जात नामजदगी दाखिल होते हैं और कोई भी दस्तबरदार नहीं होता है तो फिर निजामाबाद में 300 ता 500 उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं। इस तरह यहाँ ईवीएम का सवाल ही नहीं रहेगा और ना ही बैलेट पेपर काम आएगा, बल्कि यहाँ इतने उम्मीदवारों के लिए बैलेट बुक ही तैयार करनी पड़ेगी। గత నెల రోజుల నుంచి పసుపు మరియు ఎర్రజొన్న మద్దతు ధరకై ధర్నాలు రస్తరోకోలు చేసిన ఈ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈరోజు ఎలక్షన్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఉన్నందున ప్రతి ఒక్క గ్రామం నుంచి 5 రైతులము నామినేషన్లు వేయాలని రైతులందరం తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। के कविता एक बार फिर टीआरएस उम्मीदवार, टीआरएस कायदीन और के कविता के हामियों में मसरत की लहर, अफवाहों का खात्मा। के कविता ने निजामाबाद से इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी। नेहरू पार्क पर मुस्लिम अक़लियती कायदीन ने जबरदस्त आतिशबाजी की और मिठाई तकसीम करते हुए जश्न मनाया। साबिक एमपी निजामाबाद कलवा कुंटला कविता को टीआरएस ने एक बार फिर हल्का पार्लिमान निजामाबाद से अपना उम्मीदवार नामजद किया। इत्तला मिलते ही टीआरएस हलकों में जबरदस्त मसरत की लहर दौड़ गई और जश्न का सा माहौल बन गया। कुछ अरसे पहले तक भी ये क़ियास आरायां जारी थी कि
कि कविता अपना हल्का तब्दील कर सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ और टीआरएस ने एक बार फिर उन्हें अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। कि कविता को उम्मीदवार बनाने की इत्तला मिलते ही मुस्लिम टीआरएस कायदीन ने शहर के मरकजी इलाके नेहरू पार्क पर जबरदस्त जश्न मनाया और जबरदस्त आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम की। अखिलती कायदीन में सदर जिला अखिलती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम खमर, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मुजाहिद खान साबिक कॉर्पोरेटर, रफीक कुरैशी, नोडा डायरेक्टर डॉक्टर अख्तर, अकबर खान, मोहम्मद अरशद व दीगर शरीक थे। आज केसीआर साहब की जानिब से कविता मैडम का जो नाम का ऐलान हुआ निजामाबाद पार्लियामेंट भेजने के लिए, इसलिए आज तमाम हमारे माइनॉरिटी के कायदीन ने आज यहाँ पर पटाखे बजाकर खैर मुक़दम किया है और एक फार्मेलिटी है ये। इंशाल्लाह ये जीत तो हो चुकी है मैडम की, क्योंकि गोल्डन तेलंगाना के लिए निजामाबाद भी गोल्डन बन चुका है और 70 साल के अंदर ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद ने कभी भी नहीं देखा। आज पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग कविता मैडम को एक ही अंदाज में वोट डालने के लिए तैयार है। हम एक बार केसीआर साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमको ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद के लिए दिया और हम मैडम को हम बिल्कुल बड़े पैमाने पर कामयाब करके 4 लाख से ज़्यादा वोटों से कामयाब करने की हम कोशिश करेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर। तो शहर में जश्न का माहौल है। इसकी वजह यह है कि हमारी साबिका एमपी मौजूदा हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद की टीआरएस की उम्मीदवार मोहतरमा कलवाकुंटा कविता साहिबा को दोबारा केसीआर साहब ने यहाँ से निजामाबाद से लड़ने के लिए अभी टिकट का ऐलान किया गया है। अवाम के अंदर पाए जाने वाला जोश व खरोश इस बात की ज़मानत है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जिस हिसाब से शहर की तरक्की के लिए और हिंदू मुस्लिम दोस्ती के पैगाम को आम करने के लिए और अपने आप को बहैसियत हिंदुस्तान की एक खातून लीडर को मनवाने के लिए जिस तरह से कोशिश की, उसकी शानदार मिसाल हिंदुस्तान के कहीं दूसरे कोने में नहीं मिलती। आज तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने निजामाबाद के पार्लियामेंटी हल्के से कलवा कुर्ती का कविता मैडम का नाम दोबारा अनाउंसमेंट किए और मैं केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने निजामाबाद के लिए अपनी साहिबजादी को खिदमत के लिए छोड़ा है और उन्होंने 5 साल के अरसे में जो कारकर्दगी की है। आज निजामाबाद के अवाम बहुत खुश इसलिए है कि दोबारा उनको यहाँ से नॉमिनेशन के लिए कल नॉमिनेशन डाल रहे हैं। हमारे सीएम साहब चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से निजामाबाद का टिकट का ऐलान किया गया। इसमें हमारी बहन कलवाकुंटा कविता साहिबा का ऐलान किया गया। हम सारे मुसलमान आज यहाँ पर मौजूद और हम सारे माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे कार के निशान को वोट देकर भारी मेजॉरिटी से कविता साहिबा को जिताएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का मौका है कि निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से कविता मैडम का नाम अनाउंस किया गया है। इसकी खुशी में हम लोग जमा होकर खुशी का इजहार किए हैं और सभी दिली तमन्नाओं से ख्वाहिश करते हैं कि 11 तारीख के दिन मैडम को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर भारी अक्सर इसे कामयाब करें। आज कई अहम उम्मीदवारों ने पर्चा जात नामजदगी का एक सेट दाखिल किया, जिनमें टीआरएस के कविता, कांग्रेस से मधु याजकी गौड़ और बीजेपी से डी अरविंद के अलावा दीगर 50 से जायद उम्मीदवार शामिल है। निजामाबाद में सूरत हाल अजीब व गरीब होती जा रही है। आज 24 मार्च को पार्लिमानी हल्का निजामाबाद के 3 अहम उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिनमें टीआरएस से के कविता, कांग्रेस से मधु याजकी गौड़ जिनका पर्चा नामजदगी उनके रुफका ने दाखिल किया, जबकि बीजेपी से डी अरविंद ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मंसूबे के तहत पीर के दिन ये तमाम ही उम्मीदवार मजीद एक पर्चा नामजदगी रियाली के साथ दाखिल करेंगे। आज किसानों की जानिब से भी कई पर्चाजात नामजदगियां दाखिल किए गए। इम्कान है कि हफ्ता और पीर के दिन भी बड़ी तादाद में पर्चाजात नामजदगियां दाखिल किए जाएंगे। ताहाल नामजदगियों की तादाद 58 बताई गई है और ये भी इत्तला है कि अब तक 500 से ज्यादा अफराद ने नॉमिनेशन फॉर्म हासिल किया है। इस तरह बड़ी तादाद में पर्चाजात नामजदगी दाखिल होने का इम्कान है। इस ताल्लुक से मोहम्मद नाइम कमर, एडिटर, रोशन टीवी की रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन,
पार्लिमानी इंतखाबात के लिए यहाँ पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। मैं कलेक्टर ऑफिस के हाथ में ठहरा हुआ हूँ और मेरे तरफ पुलिस के बहुत ही माहौल बंदोबस्त है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले निज़ामाबाद की रुकने पार्लिमान जो थी मोहतरमा कलवा कुंडला कविता साहिबा ने अभी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने 2 सेट दाखिल किए और उन्होंने बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मसला जो सबसे ज़्यादा जो है सो यानी कि तशवीश का सबब बना हुआ है वो है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो सो किसान जो सो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मंसूबा रखते हैं। इस ताल्लुक़ से एक इतलात ये है कि करीब 1000 तक जो सो अपने किसान नामिनेशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ताहल अभी तक आज जो सो 3 बज चुके हैं। सिर्फ 42 जो सो पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं अब तक और इम्कान है कि पीर के दिन, कल तो हॉलीडे है, पीर के दिन जो है सो बड़ी तादाद में किसान पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात यह है कि कुछ हल्के किसानों को इस बात की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा मसला अगर हल करना है तो सिर्फ जो सो एक निज़ामाबाद पार्लिमान के रुकने पार्लिमान के सामने या TRS के किसी अहम कायद के सामने नामिनेशन डालने से मसले की यकसुई नहीं हो सकती। अगर आपको मसले की यकसुई कराना है, किसानों के मसलों को हल कराना है, तो आपको चाहिए यानी कि किसानों को चाहिए कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के सामने जो है सो पर्चा नामजदगी दाखिल करे। ये मशवरा दिया जा रहा है। अभी यही मशवरा कलवा कुंडला कविता MP मैडम साहबा ने भी दिया था। तो मसला ये है कि ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, तशवीश का सबब बनती जा रही है। लाल जवार और हल्दी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। किसान बताते हैं कि गुज़श्ता साल हल्दी की कीमत 8000 रुपये फ़ी कुंटल थी। अब जो सो उसको घटाकर जो सो व्यापारियों ने 4000 या 4200 रुपये कर दिया है। तो आधे को आधा मामला होगा 1 साल के अंदर, जिसकी वजह से किसान बराम है और उन्होंने एहतजाज किया था। एहतजाज के बाद जो है सो बताया जाता है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, जिसकी वजह से किसान बराम है और चाहते हैं कि हुकूमत पर दबाव बनाया जाए। और उन्होंने मंसूबा बनाया कि जो है सो यहाँ पर बड़ी तादाद में नामिनेशन डाले जाए और इंतखाबात को या तो इल्तवा का शिकार बनाया जाए या फिर मुश्किल बनाया जाए। ये कोशिश उनकी किस हद तक कामयाब होगी, मनसूबाबंदी में उनकी किसानों की मनसूबाबंदी किस हद तक असरअंदाज होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बड़ी तादाद में जैसा कि किसानों का मंसूबा है 500 या उससे ज़ायद अगर जो सो पर्चाजात नामजदगी दाखिल होते हैं तो फिर ये बहुत ही तशवीश की बात होगी। इंतखाबात का अल्तवा भी मुमकिन है, बैलेट पेपर की तैयारी भी एक मसला बनेगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसानों को हमवार किया जाए, उनको समझा बुझा कर रोका जाए। ये कोशिशें तेज़ होती जा रही है। लेकिन कुछ सियासी हल्के किसानों की पुष्पनाई भी कर रहे हैं, उन्हें तरगीब दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नामिनेशन दाखिल किए जाए ताकि इलेक्शन को इल्तवा का शिकार बनाया जाए या उसमें रुकावटें पैदा की जाए या जो है सो बरसर इख्तिदार जमात पर तनाव का माहौल बनाया जाए। तो बहरहाल देखेंगे कि आखिरी दिन यानी 25 तारीख को पर्चाजात नामजदगी के अतकाद का आखिरी दिन है। उस वक्त को क्या है सूरत हाल होती है। फिर उसके बाद में पर्चाजात नामजदगी के दस्तबरदारी का भी एक मौका रहेगा। उसके बाद ही सही सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है कि निज़ामाबाद हल्के पार्लिमान से कितने अफराद मुकाबले की दौड़ में रहेंगे। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए,
हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, पलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 2245 मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा लें, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के श्रीनगर कॉलोनी में तेलंगाना जन समिति जिला पार्टी ऑफिस में जिला कन्वीनर अंबुजी प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना जन समिति पार्टी किस पार्टी के उम्मीदवार को ताउन करेगी अभी कुछ तय नहीं किया गया। बाहर जो अफवाहें फैल रही है वो झूठी व बेबुनियाद अफवाह होने का इजहार किया और हम कौन सी पार्टी को ताउन करेंगे वो प्रोफेसर कोदंडाराम तय करेंगे। डिशबली मंडल के मौजाजात में पोलिंग मराकज में राय दही पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम हुई। ग्रेजुएट्स ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया और इसी तरह मंडल के घनपुर गांव में पोलिंग मराकज पर MLC विजयगौड़ ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। इस मौके पर तहसीलदार अय्यप्पा ने कहा कि असातिज़ा के 76% पोलिंग हुई है और ग्रेजुएट की तरफ से 66% पोलिंग होने का इजहार किया। जनगामा जिले का रहने वाला लक्ष्मण नामी किसान अपनी फसल को लेकर टाटा AC गाड़ी के जरिए निजामाबाद आ रहा था। इंदलवाई मंडल घनपुर के करीब गाड़ी के सामने का टायर फट गया, जिससे गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में किसान लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम की फरियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात किए जाने का SI राजशेखर ने इजहार किया। एडपली मंडल के सरकारी दवाखाने में आतिशज़दगी वाक़यात पर कैसे काबू पाया जाए मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बोधन डिवीजन फायर अमले के ओहदेदार प्रवीण कुमार ने शिरकत की और कहा कि मौसम गर्मा में अक्सर आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं। झोपड़ी मकानों में बरक़ी शॉर्ट सर्किट, मिट्टी के तेल और गैस सिलेंडर लीकेज से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ सकता है। उनसे कैसे बचे मालूमात फराहम की गई। इस प्रोग्राम में तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर जुवेरिया सुल्ताना, HEO रामलू, तिब्बी मुलाजिमीन, फायर मुलाजिमीन और आशा वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से 50 से जायद पर्चा जात नामजदगियां दाखिल। TRS, BJP और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी नामजदगियां दाखिल की। मफाद परस्त सियासी जमातें किसानों को उकसा रही है। किसान मोदी और राहुल के खिलाफ पर्चा जात नामजदगी दाखिल करे क्योंकि मसले का हल उनके पास है। ये कविता का बयान। अवामी मफाद में भेजा गया मरकजी बजट मिशन भगीरथा में इस्तेमाल। कमीशन की खातिर अवाम का नुकसान। डी अरविंद का TRS हुकूमत पर संगीन इल्जाम। 3 तलाक के मसले पर गुफ्तगू।
इंतखाबात में सियानती बंदोबस्त के लिए BSF की 2 कंपनियों की आमद, CP कार्तिकिया ने की मुलाकात, राय दही से कबल मजीद फोर्स की आमद मुतवक्के। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।